Good morning everyone. This is Sarfraz sir. Today we will discuss about the chapter number 4, operating system. Why operating system is important? What is operating system? It is a type of software. It is a type of system software that is used to manage overall functioning of computer system or the mobile phone. How does a computer work? On, input, process, output cycle. Share your answer with an example. Okay, we will share it with an example. Our input output system works when we give something to the computer that process and give output accordingly. Operating system is first program that is loaded into the memory of the computer. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसकी मेमोरी में एक प्रोग्राम लोड होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं. द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड बूटिंग. ये स्टार्टिंग जो होती है जिसमें ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है वो हमारी बूटिंग कहलाती है. ठीक, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत आसानी से आप लोग समझ पाएंगे जब मैं नाम लूँगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का. जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसमें स्टार्ट बटन्स, टास्क बार, डेस्कटॉप, ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज होती हैं. और इजीली आपको बताने की कोशिश करूँगा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. वो भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ यूज्ड फॉर स्मार्टफोन्स. राइट, इट एक्ट्स अ लिंक बिटवीन अ सॉफ्टवेयर एंड दी हार्डवेयर. जो हमारे कंप्यूटर की मशीन है या मोबाइल की जो मशीन है वो कैसे समझेगी आपकी बात को कि आप कौन सा टास्क उसे परफॉर्म करवाना चाहते हैं. इट कंट्रोल्स एंड कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर प्रोग्राम्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर. राइट, सबका ये ट्रैक रखती है. नाउ वी विल कम यूज़र. वी पीपल आर द यूज़र. देन एप्लीकेशन. We are using the applications like MS Word or any screen recorder or anything else that we are using, those that is application. Operating system is helping application softwares for managing different type of tasks, and hardwares are keys, our touch screens, our headphones, our mics are working accordingly. So this complete system is running in any operating system with the help of any operating system. Right, so it is a very good and very essential components of our computer system or the mobile system. What is the need of it? The operating system help you to communicate with the computer, we have discussed. Without operating system we cannot operate any mobile phone or any system, because we can also say it is a soul of the computer system. When we talk about the computer system, it doesn't mean it is only computer system. Today's smartphones are also a type of computers. It means we are carrying computers in our pockets. Here one of the examples: hardware, this is operating system, application software, internet browser. These are complementary of each other. Right, these all things are operating with the help of operating system. We are communicating with our hardware, we are using internet in operating system, computer games we are playing in operating system. System software, many system softwares are there, those are utility software, those are responsible for the smooth functioning of our system. Now we are coming to the popular operating systems. Microsoft Windows is one of the most popular operating system developed by Microsoft. It is multitasking and multi-user operating system. It means बहुत सारे टास्क एक बार में परफॉर्म किए जा सकते हैं और एक से ज़्यादा यूज़र इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं. एप्पल मैकओएस, इट इज़ फॉर एप्पल. राइट, एप्पल के आपके जो सिस्टम्स आते हैं उनमें मैकओएस होता है. इसी तरह से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करता है
और वायरस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन बॉथ GNU Linux. It is collaboration between Linux and Indian government. They have launched an operating system for government offices. Right? It is a type of different but graphical user interface operating system. Now we are coming to the types of operating system. Operating system can be classified on the basis of their type or the interface. There are basically two categories. One category is character user interface, right? This character user interface in which we only give the characters to the computer. It was one of the oldest operating system, MS-DOS. It means Microsoft Disk Operating System. We used to give each and every command to perform any task. यह ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी हमारे कंप्यूटर्स में होता है. आप सिर्फ रन में जाकर CMD टाइप करते हैं, एंटर करते हैं और ब्लैक कलर की एक स्क्रीन आ जाती है. उस पर जो भी हम कमांड्स लिखते हैं, बट वी कैन नॉट वर्क ईजिली इन दैट. हमें हमारा क्योंकि ग्राफिकल यूज़र नहीं है जिससे हम क्लिक करते ही एक्शंस को परफॉर्म कर सकें, बल्कि इसमें क्या होता है कि कॉपी करने के लिए हमें कॉपी कॉन कमांड देना पड़ती है, डिलीट करने के लिए हमें डेल कमांड देना पड़ती है, ऐसे ही कोई भी फ़ोल्डर बनाने के लिए mkdir कमांड देना पड़ती है. डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, यहाँ तक एग्ज़िट करने के लिए हमें कमांड्स को देने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप ईच एंड एवरी कमांड इन आवर माइंड. और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे लिए कैसे ईजी है कि सिंपली वहाँ पर आइकन्स आ रहे हैं, बहुत सारे आइकन्स आ रहे हैं और उसमें वो हमारे डिफरेंट एप्लीकेशन के आइकन्स हैं. यही हमारे टच स्क्रीन्स पर हो रहा है, यही मोबाइल फ़ोन्स में हो रहा है. हम अपनी एप्लीकेशंस को क्लिक करते हैं, वहाँ ऑलरेडी जो है वो लेबल्स होते हैं, उन लेबल्स पे हम क्लिक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं. Now we are coming to the graphical user interface. These days are this era is of graphical user interface, in which Windows is very popular operating system. See Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, on which we can also work by touch screens. Right? It is very helpful where multiple options are there. We just click on the options and we can perform our task easily. Application softwares are those which work particularly. It means application को रन करने के लिए कोई भी किसी भी तरह से किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं. जैसे फ़ोटोशॉप फ़ोटो एडिटिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टाइपिंग के लिए, पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशंस. लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये ओवरऑल मैनेज करने का काम करता है. राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ टास्क सपोर्टेड एट अ टाइम. पहले हम बात करते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे डॉस हमारा है, उसमें एक बार में एक ही कमांड जो है वो आप दे सकते हैं. ठीक, या मल्टीपल भी अगर देंगे तो वो 1 बाय 1 टास्क को ही परफॉर्म करता है. राइट? उसके बाद हमारा आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे एप्पल मैक OS है, विंडोज़ 7 है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अब मल्टीटास्किंग कैसे हम एग्जांपल्स को समझ सकते हैं कि हमने क्लिक किया हुआ है और हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है, साथ में हमने प्रिंट की कमांड भी दे रखी हुई है, हमारी प्रिंटिंग भी चल रही है और हम इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं. तो हम मल्टीटास्क को एक ही बार में परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक, इसके अलावा और दूसरी प्रोसेसिंग्स भी आप दे सकते हैं. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के CPU को अलग अलग टर्मिनल्स में यूज़ किया जा रहा है. कई बार कैफ़ेज़ में ऐसा होता है कि वो कम बजट की वजह से टर्मिनल्स को डिवाइड कर देते हैं और आपके एक सिस्टम से 4 टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है? और बहुत कई सारी जगह पर आपने देखा होगा जहाँ पर लार्ज कैपेसिटी के CPUs होते हैं, वहाँ पर सिर्फ टर्मिनल्स लगे होते हैं. तो ये एक तरीके का टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम: रिकॉग्नाइज एंड इंस्टॉल
पेरिफेरल डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, जैसे प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, जो अलग से डिवाइस हैं जो हम लगाते हैं, ठीक है, वो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। उनको सपोर्ट करने का काम भी यही करता है। मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर, इसके अंदर सारे फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं, उनको भी मैनेज करने का काम करता है। शेयर आउट सिस्टम मेमोरी को शेयर करने का काम करता है। आप पेन ड्राइव लगाते हैं, उसको रीड करा देता है। हैंडल सिस्टम एरर्स, कई सारी एरर्स को ऑटोमेटिकली ये रिपेयर कर देता है। मैनेजेस सिस्टम सिक्योरिटी, आपके सिस्टम में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। मीन्स अगर कोई अनवांटेड फाइल आती है तो ये आपको मैसेज पे प्रोवाइड करता है। अलाउ सॉफ्टवेयर्स टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर, आप अपने सॉफ्टवेयर पे जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर को चलाता है। मूव्स डाटा टू एंड फ्रॉम द हार्ड डिस्क के डाटा को मैनेज करके दूसरे डिवाइसेस में, और दूसरे डिवाइसेस के डेटा को हार्डवेयर में मैनेज करने का काम करता है। आप कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं। लोड्स एंड रन्स अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जो भी आप लोड करना चाहते हैं, आपने इंटरनेट से कोई भी एप्लीकेशन को लोड करना चाहते हैं, उनको भी काम ऑपरेट करने का काम करता है। हैंडल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको रिसीव करता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग के बाद में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूज़र, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल डॉस, और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हमारा उबंटू, लाइनक्स, विंडोज़, मैक ओएस। तो जिसमें मल्टीटास्किंग हो सकती है, दोज आर मल्टी टास्किंग एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और जिसमें सिंगल यूज़र काम कर सकता है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, नाउ द डेज आर मोबाइल फ़ोन्स आर लाइक अ कंप्यूटर, राइट। तो इसमें सबसे पॉपुलर है हमारा एंड्रॉयड, दैट इज़ मेड बाय द गूगल। उसमें आप देखते हैं कि कितने आसानी से हम क्लिकिंग के थ्रू सारे एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। इसमें एक प्ले स्टोर होता है जिस पर बहुत सारी एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं, और उन एप्लीकेशंस को हम डाउनलोड कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे MS ऑफिस की तरह WPS ऑफिस होता है, ऐसे ही WPS में हमारे पावर पॉइंट भी होता है, ऐसे ही फ़ोटो एडिटिंग टूल होते हैं। तो जो भी एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर्स में होती हैं उसी तरीके की सेम एप्लीकेशंस हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, जो हमारे टास्क को हमारे मोबाइल फ़ोन पर परफॉर्म करने के लिए बहुत हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो इट वॉज द चैप्टर। आई एम ऑल्सो sending one PDF along with this. You have to complete this chapter in your copy. Thank you so much everyone.